हाँ जी एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब हमारा मुद्दा इस वीडियो सेशन का ये है कि वी विल ट्राई टू लर्न अ कॉन्सेप्ट थ्रू अ मीन्स आंसर। मीन्स में आंसर राइटिंग को लेकर के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे समझना के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अब क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुड नॉट बी यूज्ड एज अ sword but as a shield. Comment it. Illustrate your answer referring to the statutory provisions and decided cases. तो ये बेसिकली 15 मार्क्स से 20 मार्क्स में पूछा जाएगा। लेट्स सी इन्होंने क्या लिखा है। द स्टेटमेंट, ठीक है, क्लियर नहीं है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुड नॉट बी यूज ए sword but as a shield. Explains the situation wherein right of private defense can be exercised. It means it is used to protect oneself, not to harm the aggressor or any other person. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। The law of right to private defense covers an important facet of the constitutional right under Article 21, that is right to life and personal liberty. The legal provisions given in the Indian Penal Code from 96 to 106. The legal provisions in the Indian Penal Code from section 196 to 106 and section 34 to 44 of the BNS is in line with the constitutional provisions of reasonableness, fairness, equity, justice, good conscience and principles of natural justice. ठीक है, तो इसमें मान करके चलो 1 से 2 मार्क 2 मार्क्स मिलेंगे, 1 to 2 मार्क्स। मैं इसको दूंगा 1.5 मार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस राइट इज टू अलाउ, ये होगा अलाउ द इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ठीक है, फुल स्टॉप। इन द केसेस ऑफ इमरजेंसी, कॉमा, इन द केसेस ऑफ इमरजेंसी, इन द केस ऑफ दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2010, द rationale behind this right was laid down as it is a duty of a state to protect the citizens as a part of social contract theory, but state can't be everywhere, so this right has been provided to the citizen to protect themselves and others with respect to their body and property. ठीक है, ये भी ठीक है। इसको माना यहाँ पर मैंने 1 मार्क यहाँ पर ऐड हो गए। द लॉ लेट डाउन इन द इंडियन पिनल कोड स्पेसिफिकली फ्रेम्स a important facet of right to private defense. ठीक है, चलो ये गलत है। Section 96 declares that nothing is an offense if it is done in the exercise of right of private defense. Section 97 lays down where the right of private defense is available, thereby restricting it only to the body of oneself and others, the property of oneself and others, apart from the these situations, right of private defense can't be exercised. ठीक है, ये restrictions mention किया है इसने। Section 98 creates a legal fiction whereby the reason of youth, want of maturity, unsoundness of mind, intoxication, or by reason of misconception, all the part of that person, क्या है, all the part of that person is generally excluded. On the part of that person is generally excluded, but Section 98 creating a legal fiction deems that there is absence of these conditions and avail the right of private defense against and ठीक है, तो ये अनक्लियर है, ये जो है। चलो फर्स्ट पार्ट इसका जो अगर देखा जाएगा, फर्स्ट पार्ट इज
क्लियर, इसमें मैं हाफ नंबर दूंगा। सेकेंड पार्ट इज इन क्लियर, कोई नंबर नहीं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज लेट डाउन इन सेक्शन 99 whereby it states that anything done, the restriction of private defense, okay, done by a public servant acting in the color of his office, पहला सही है। done by a person directed by public servant in the color of his office on the direction, ठीक है। तीसरा whereby time recourse from public authority is available, ठीक है। there is no right of private defense as public servant, भाई ये बंदा अनक्लियर है, जो भी लिखा है ये थोड़ा अनक्लियर है, या तो ये हड़बड़ी में लिख रहा है या तो इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। वैसे पब्लिक दैट्स व्हाई प्रोटेक्शन इज गिवन टू देम, ओके। केसेस लिखे यहाँ पर। इन केस ऑफ योगेंद्र महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात इट वाज हेल्ड दैट with the imminent danger, with imminent danger it is not expected, it is not expected to run away from the danger. A person faced with imminent danger is not expected to run away from the danger, rather he has his inherent right to protect from the danger, and this reasonable force, and for this reasonable force to repel, and to use of reasonable force to repel this danger is allowed, thereby justifying this statement it should be used as shield, ठीक है। बढ़िया, जो स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है वो जस्टिफाई कर रहा। मोर ओवर 100 to 105 postulates, not postulates, the given statement and tries to justify the standings made by the statement in private defense of body as postulated under section 100 and 101 of the code, tells about the place where a person can cause the death of the aggressor, thereby the extent of the shield, thereby providing the extent of the shield, which is shield is thereby the extent of the, okay, thereby the extent of the shield is so much that death can be caused, whereby section 101 explains the extent of the shield whereby harm other than death can be caused, ठीक है। shield का extent बता दिया, बढ़िया। according to section 100 that can be caused in following cases: assault, where there is assault which cause reasonable apprehension of that would be the consequence of the such assault। ये पूरा बुक से देख करके छापो, अपने से नहीं लिखा हुआ। when assault cause reasonable apprehension of grievous hurt, that हो गया, grievous hurt हो गया। an assault cause reasonable apprehension of wrongful confinement, ये भी सही है, no recourse to public authority। an assault with intention to committing rape, natural lust, kidnapping and abduction, ठीक है। there is always physicality element present in this case as can be inferred from the word assault, ठीक है। assault में physicality element है। In the cases of kidnapping and abduction, right will be not available in all cases but only in case of kidnapping by taking and abduction by force, बढ़िया है। it is for the accused to prove the element of reasonable apprehension only, only a act can be sufficient to reasonably apprehend the person, only a single act, single होना चाहिए, single act can be sufficient to reasonably apprehend the person, whereby as in the case of intention the intention of aggressor is to be proved, ठीक है, and
burden to prove the intention is much more higher than of reasonable apprehension. बढ़िया explain किया law को. The above mentioned section tries to justify the cases in which right of private defense of body can be exercised as a shield wherein death or wherein, अब इसके आगे क्या होगा, wherein death or other than death can be caused, that is, ठीक है. The above mentioned sections tries to justify the cases wherein the right to private defense of the body can be exercised, that is, as soon as the reasonable apprehension of the above mentioned offences starts, this right is available. ये इसका कोई लिखने का तुक नहीं है. Apart from the above mentioned situation, in section 100, the death is caused will be said to, if the death is caused, it will be said that the right of private defense is used as a sword. क्वेश्चन नहीं छोड़ा बंदे ने, ठीक है. Similarly, if the for the property also, section 103 mentions some offense, and section 105 tells where it would be used as shield, where it would become sword. Theft में till the offender effected its retreat, assistance by public authorities is obtained, property is recovered. ठीक है. रॉबरी का एक्सप्लेन किया, एज लॉन्ग एज द रीजनेबल, ठीक है, बढ़िया. मिसचीफ का किया है, इंस्टेंट वाला, हाँ. मिसचीफ का एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज टू कमिट criminal trespass or mischief. House breaking by night, as long as the house breaking continues. And if any of the given situation, if the death is caused, then it will be said that this right is used as shield. And apart from the above mentioned situation, if the death is caused, then it will be said that right is used as sword. In the case of George Demnick versus State of Kerala, it has been held that whether the right of private defense is exercised as a shield or sword, it depends upon the facts and circumstances of the case. Generally, बहुत बढ़िया. Generally, right of private defense subscribes the fundamental right provided by the Constitution through Article 21, and it can't be weighed in the golden scale that the right of private defense is used as shield or a sword. It depends upon the facts and circumstances of the case, and in some case, slight use of force, slight use of this right may as a sword as may be allowed, ठीक है. Hence it can be said that right to private defense is to be used as shield but not as a sword. हाँ ठीक है. बंदे ने स्टेटमेंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से जस्टिफिकेशन दिया, जस्टिफिकेशन बहुत बढ़िया तरीके से दिया है, ठीक है. रेदर देन मेंशनिंग ऑल द क्वेश्चंस, अगर आप इसमें से अगर कोई क्वेश्चंस उठा, मतलब कि कोई पोर्शंस उठा सकते हैं, तो ये जॉर्ज डेमनिक वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस उठा सकते हो, ठीक है. ये टेबल वाला, हाँ ठीक है, अप टू द एक्सटेंट सही है, ठीक है. और सिमिलरली फॉर द प्रॉपर्टी, ठीक है. इसने क्या प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, दो इसकी लैंग्वेज अनक्लियर है, ठीक है, वैसे क्लैरिटी नहीं है, फिर भी आउट ऑफ 15 ही विल गेट 7 to 8 नंबर, ठीक है. इम्प्रूवमेंट नीडेड, ठीक है. अब इम्प्रूवमेंट नीडेड, ठीक है, और क्लैरिटी इज मिसिंग, क्लैरिटी मिस हो रहा है इस आंसर में. हाँ, तो इस आंसर को सुंदर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है. तो इधर देखते हैं, द स्टेटमेंट एक्सप्लेन. इसमें ऐसा, इस आंसर में मेरे को ये लग रहा है कि बार बार रिपीट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है. सिंपली अगर ये जो आंसर है, इसको सुंदर बनाने के लिए यूजेस शील्ड एंड सोड,
तो इसके लिए आप कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आपको वो स्टेटमेंट लिखना है, राइट द स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद दर्शन सिंह का केस था ना, रैशनली रैशनली बिहाइंड राइट टू प्राइवेट डिफेंस कर दो, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21 का फैसेट, ठीक है। एंड देन आप स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसमें मेरे ख्याल से कौन कौन से सेक्शंस यूज हुए हैं? इस बंदे ने सेक्शंस कौन कौन से यूज किए हैं? 96 तो यूज किया ही है, 97 भी यूज किया, 98 भी यूज किया अनसॉन्ड माइंड वाला, ठीक है। 99 को यूज कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते, ये इसने किया। और 100 भी यूज किया है, 103 भी यूज किया, तो ये प्रॉपर है, प्रॉपर। बस इसके अगर नंबर कट रहे तो इसकी क्लैरिटी नहीं है बढ़िया, ये जो लिख रहा है या क्लैरिटी है तो फिर इसकी राइटिंग स्किल्स बढ़िया नहीं है, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन बढ़िया से नहीं आ रहा, और राइटिंग थोड़ी क्लियर है। इट वुड बी अ प्लस पॉइंट इफ अगर यहाँ पर कोई कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस हो जाता, ठीक है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो, एज सच ये जो चलता है ना ग्राफ, ठीक है। सपोज कि यहाँ पर पीडी स्टार्ट होता, पीडी यहाँ पर स्टार्ट होता और यहाँ पर एंड होता, ठीक है। और यहाँ पर पूरा सेक्शन तुम्हारा 103 है, एक सेकेंड, हाँ 100 है, नॉट 103, सेक्शन 100 है, एंड 103 भी ले लो, 101 2 3, हाँ ये प्रॉपर्टी वाला है, ठीक है। यहाँ पर राइट स्टार्ट होते 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 यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर डेथ कॉज करता है, यहाँ पर डेथ हो जाती है, या तो फिर राइट डाउन यहाँ नहीं मारा तो फिर जाकर के यहाँ पर मार दिया, और फिर यहाँ से आते आते इधर एंड हो गया। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस समझाने का कोशिश करूँ मैं, होता क्या है बेसिकली, तो आपकी राइट यहाँ से स्टार्ट हुई, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई, जो 100 की राइट है, 103 की राइट है, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन से आप वो देख लोगे समझ जाओगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब ए की राइट यहाँ से स्टार्ट होती है, ए चलते चलते अगर इस पॉइंट पे, इस टाइमलाइन पे अगर डेथ कॉज कर सकता है तो ये विद इन द राइट है, विद इन राइट प्रोवाइडेड बाय लॉ। इस सिचुएशन में भी है, इट इज द राइट प्रोवाइडेड बाय द लॉ, विद इन द राइट प्रोवाइडेड बाय लॉ। बट सपोज इस पॉइंट पे जो ए है और एग्रेसर बी है, एग्रेसर को मान करके चलो बी है, ए ने अगर बी को मार दिया तो यहां पर बोला जाएगा एक्सीड टू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। अब इसी से अगर सील्ड और सोल्ड वाली केसेस को समझेंगे, दिस इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर द प्रॉपर्टी एंड बॉडी वाले चीजों को, ठीक है। अगर हाँ, अगर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक बंदा डेथ कॉज करता है तो वो सोर्ड वाला केस में आ जाएगा, कि भैया तुम तलवार लेकर के मार ही रहे हो, एकदम सील्ड के तौर पे नहीं है। लेकिन इस पॉइंट से लेकर के अगर इस पॉइंट तक अगर बंदा एनी अदर हार्म कॉज कर रहा, तो
वो डेथ का पोजीशन नहीं होगा। मतलब कि वो अपने राइट विद इन द राइट्स है, एंड इट इज ही इज एक्सरसाइजिंग हिज राइट्स एज अ शील्ड, नॉट एज अ सॉर्ड। ठीक है। सिमिलरली इस सिचुएशन में, ये वाले सिचुएशन में अगर उसने डेथ कॉज कर दी तो पीडी यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर जाकर के डेथ कॉज किया, मतलब यहां मैक्सिमम पहुंच गया भाई कि अब मारने के सिवा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर इस सिचुएशन में मार देता है देन ऑल्सो इट विल बी सेड एज कि उसको सील्ड की तरह यूज किया जा रहा। अब मान करके चलो ऐसा असॉल्ट कर रहा कोई बंदा तेरे ऊपर कि एकदम तुम्हें लग रहा है कि भाई मेरा पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा, या तो तुम्हें पटक पटक करके मार रहा है, तुम्हें मारना, तो इन ऑर्डर टू डिफेंड योर सेल्फ तुम उसको मार दिए। अब मार दिए, कितना मारे, कितने जोर से मारे, क्यों मारे, इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस। लेकिन तुम्हारा सिचुएशन जस्टिफाई हो रहा है ना, तो वो उसको दैट विल बी कॉल्ड एज सील्ड, सील्ड वाले सिचुएशन में। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में शॉर्ट की कोई सिचुएशन आ ही नहीं सकती है, फिर यहाँ पर भी वही होगा और यहाँ पर भी वही होगा। तो राइट कब और कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, इसका कोई गोल्डन स्केल नहीं है, वेइंग स्केल नहीं है भाई कि भैया तुम इस समय पे इतना ही राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, इस समय पे इतना ही राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये डायग्राम अगर मेंशन करके थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो ये डायग्राम को, बिकॉज ये दिस डायग्राम इज सफिशिएंट इनफ टू फेच यू मार्क्स। ठीक है। अगर ये बंदे के पास ये डायग्राम होता तो नो डाउट इसको 12 के आसपास तो मिल ही जाता, या 10 से 11 मिलता, चलो सपोजली 10 से 11। तो ये डायग्राम एडिशनल, जो एडिशनल फालतू के इसने फैक्ट्स लिखे हैं, ठीक है, इतना लंबा तो इंट्रोडक्शन में ही लगा दिया, तो ये फालतू के मार्क्स है, फालतू के इंस्टेड अगर ये यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना देता, डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता, उसके बाद लॉ बता देता, लॉ को कनेक्ट कर देता है स्टेटमेंट्स के साथ में, तो इसको मार्क्स मिल सकते थे। हाँ, तो बस दिस वाज इट एक क्वेश्चन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, एंड मेक श्योर कि अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है, मेंस के जो क्वेश्चंस है उसके थ्रू अगर आप कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, केसेस की कोई कमी नहीं छोड़ी है इसने बंदे ने। 2 केस लिखे, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, और एक और केस था योगेंद्र महाराज, तीसरा 3 केसेस लिखे, तो या ठीक है, केसेस में इसने कोई कमी नहीं छोड़ी है। 3 केसेस, 4 केसेस 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट होता है, मोर देन सफिशिएंट। हाँ, तो एंडिंग दिस वीडियो देख लो, आपको अगर कुछ समझ में आया, बढ़िया चीज़ समझ में आया, मैं अगर कुछ एक्सप्लेन कर पाया अच्छा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। लाइक और सब्सक्राइब मत भी करो भाई, तुम्हारी इच्छा, मैं तो डाल रहा हूँ। टेक केयर, बाय बाय।